إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جس کے ذریعے سے، اس درس کے ذریعے سے تزکیہ نفس کا تزکیہ یہ مقصود ہے، اور سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں جس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھنی ہے یا جن آیتوں کی تفسیر پیش کرنی ہے، یہ آیتیں ہیں آیت نمبر 103، وہ آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105۔ آج انشاءاللہ ہم ان آیتوں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آیت نمبر 103 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ یہ آیت نمبر 103 ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے جو ہے سامنے قل کے بارے میں بات پیش کی ہے کہ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالاخسرین اعمالا، کہ ہم کیوں نہ تمہیں بتا دیں۔ یہ اصل میں حل جو ہے کوشچن کے لیے، استفہام کے لیے عربی زبان میں سوال کیا جا رہا ہے، اور مقصد سوال کرنے کا یہاں پر سوال کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے تعلق سے بات پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہم آپ کے سامنے ایسے لوگوں کے بارے میں جو عمل کے لحاظ سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، بڑے خسارے میں ہوں گے، عمل کر تو رہے ہیں، کام کر تو رہے ہیں، محنت کر تو رہے ہیں، تگ و دو کر تو رہے ہیں، اور ہمیشہ بزی رہتے ہیں، بزی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی عمل کے لحاظ سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں ہیں، کیونکہ جو عمل کرنا چاہیے اس عمل سے بہت دور ہے، اور جو عمل نہیں کرنا چاہیے اس عمل میں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کی کوششیں، ان کی محنتیں صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہیں، غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کیوں نہ تمہیں ان کے بارے میں بتا دوں۔ یعنی مطلب یہ سوال کرنے کا، یہاں پر یہ استفہام کو عربی میں کہتے ہیں، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، عربی بلاغت جانتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے استفہام للتقریر، یعنی سوال کرنا نہیں بلکہ کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے، تو بھی کوشچن کا انداز، سوال کرنے کا انداز یہ اپنایا جاتا ہے، سوال کرنے کا یہ میتھڈ ذکر کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔
آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں کیوں نہ بتا دوں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الاخسرین، یہ اخسر عربی زبان میں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخسر کہتے ہیں، جس کا معنی ہوا زیادہ گھاٹا اٹھانے والا۔ اسی کی یہ جمع ہے اخسرین، بالاخسرین، با کی وجہ سے حالت جر میں ہے کہ زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ، پلورل یہ ہے بہت سے لوگ۔ اعمالاً عربی زبان کے لحاظ سے یہاں یہ جو منصوب ہے یہ تمییز ہونے کے لحاظ سے منصوب ہے، تو عمل کے، اسی لیے معنی کرتے ہیں عمل کے لحاظ سے، کام کرنے کے لحاظ سے، محنت کرنے کے لحاظ سے کون سے لوگ ہیں جو بڑے گھاٹے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، میں تمہیں کیوں نہ بتا دوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے میں تمہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یقیناً ہر دل کی یہ آواز ہوگی، ہر زبان سے یہ آواز نکلے گی کہ کیوں نہیں، ضرور بتا دیجئے ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ان لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام نہ آ سکے۔ ایک طرح سے آج کی زبان میں کہنا ہو تو یہ بلیک لسٹ والے لوگ ہیں، اس بلیک لسٹ والے لوگوں میں ہمارا نام نہ آئے، اس کے لیے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری رکھنا ضروری ہے، تو کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ ہمیں۔ یقیناً ہر دل کی یہ جو ہے آواز ہوگی، ہر زبان کی یہ پکار ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ہر کوئی یہ آیت سننے کے بعد یہ ضرور کہے گا کہ ضرور بتائیے کہ کون سے لوگ ہیں جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ یعنی ایک تو آدمی عمل کرتا ہی نہیں ہے، کام چور ہے، بالکل جو ہے لیزی ہے، سویا رہتا ہے دن بھر اور کچھ نہیں کرتا ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا ہے، اس کا گھاٹا تو اپنی جگہ پر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو لگا ہوا ہے، محنتوں میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، پوری جو ہے کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی ساری کوششیں، ساری جو ہے جد و جہد اور ساری محنتیں رائے گاہ جا رہی ہیں، برباد جا رہی ہیں، اس کو گھاٹے کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں، فائدے کی طرف لے جانے کے بجائے گھاٹے کا سودا کرنے کے لیے میرے بھائیوں دنیا میں کون تیار ہوتا ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کو پتہ لگے کہ کون سا سودا گھاٹے کا سودا ہے اور کون سا سودا پروفٹ کا سودا ہے، جہاں سے ہمیں پروفٹ ملنے والا ہے، نفع ملنے والا ہے۔ یہ ہر کوئی یہی چاہے گا، ہر کوئی یہی کہے گا۔ تو یہ جھنجھوڑ دینے والا انداز، دلوں کے تار کو چھیڑ دینے والا یہ انداز اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا آیت نمبر 103 میں۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 104 میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہی میرے بھائیوں آج کے درس میں نوٹ کرنے کی بات ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو عمل کے لحاظ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 104 میں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ گھاٹا اٹھانے والے، عمل کے لحاظ سے گھاٹا اٹھانے والے، خسارے میں رہنے والے، لاس میں جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں، جن کی محنتیں اور جن کے کام، جن کے ورک اپنا راستہ بھول گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی کوششیں بھٹک گئی ہیں، راستے سے بھٹک گئی ہیں۔ میں لفظی اس کا معنی کر رہا ہوں آپ کے سامنے آیت کا، پہلے پھر جو ہے اس میں ہمارے لیے غور و فکر کی کیا باتیں ہیں اور اس کی تفسیر میں اہل علم نے، سلف نے کیا باتیں کہی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ آپ ایک ایک لفظ پہ غور کر لیجئے۔ الذین، جو لوگ، ضل راستے سے بھٹک گئی، ضل عربی میں کہا جاتا ہے
रास्ते से भटक जाना। इसी से आप कुरान में सूरह फातिहा में पढ़ते रहते हैं, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन। वलद्दालीन जो आप पढ़ते हैं, दालुन कहते हैं रास्ता भटका हुआ शख्स, वो इसमें फाइल है और इसी फेल से है दल्ला। दल्ला दल्ला का माना क्या हुआ? रास्ते से भटक गया। दल्ला रास्ते से भटक गया। रास्ता उसका जो रास्ता था, सीधा रास्ता जिस पर उसे चलना चाहिए था, जो उसको टारगेट की तरफ ले जाने वाला सही रास्ता था, उस रास्ते से वो क्या हो गया है? भटक गया है। दल्ला ये माना याद रखिए। उसके बाद कहा सायुहुम, अरबी जबान में अमल भी कहा जाता है काम करने को, और एक है साय का लफ्ज। साय कहते हैं दौड़ भाग करना। सा के माने अरबी जबान में आदमी जो दौड़ भाग करता है, कोशिशें करता है, जिद्दोजहद करता है, जो है जिंदगी में इंसान जो है भाग दौड़ करता है, उन सब को क्या कहा जाता है? सायुन, कोशिश करना, मेहनत करना और स्ट्रगल जिसे आप कहते हैं। किसी भी चीज के लिए आदमी जो लगा रहता है, उसकी कोशिशें लगी रहती है, उसकी मेहनतें लगी रहती है, उसकी जिद्दोजहद उसमें होती है, वो बराबर काम में जुटा रहता है, तो उसको कहते हैं सायुन, ज़ल्ला सायुहुम। इसी से कुरान में आप ये भी आयत पढ़ते रहते हैं, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जो कि जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। सा कोशिश कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो जिद्दोजहद कर रहा है, जिस काम में लगा हुआ है, जो कोशिशें कर रहा है, यही मेहनतें, यही कोशिशें और यही इंसान का काम, इंसान का ये अमल, वही उसके काम आने वाला है जो कुछ के उसने कोशिश की है। तो ये ज़ल्ला सायुहुम, याद अब गौर कीजिए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़ल्ला अमलुहुम नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? ज़ल्ला सायुहुम, उनकी भाग दौड़ सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि इसी काम से जुड़ा हुआ है ये मामला भी, कि इस काम के ताल्लुक से जो आदमी भाग दौड़ करता है, तो उस काम से जुड़ी हुई हर चीज इसमें दाखिल हो जाती है मेरे। सिर्फ अमल क्या है? ये वर्क, आदमी का काम बेकार हो गया। तो काम बेकार होना अपनी जगह पर यह भी है, लेकिन एक क्या है? उस काम के ताल्लुक से जितनी भी कोशिशें थी सब बेकार थी। काम तो अपनी जगह पर है ही, साथ में ये कोशिशें भी, ये भाग दौड़ जो उसके लिए कर रहा था, ये भाग दौड़ रास्ता भटक गई। ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। मैंने जो ये अलग अलग लफ्ज करके बात आपके सामने रखी, इससे आपको ये आयत समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और अरबी ज़बान भी जो लोग जानते हैं, तो अरबी ज़बान में और ज़्यादा क़ुव्वत आ जाती है और उसको तक़वियत मिल जाती है। और इसी तरीके से जो नहीं जानते उनको भी इस आयत के जो है इस तरह से अलग अलग आयत को जो है अलग अलग लफ्ज के साथ जब समझते हैं, तो और उनको भी थोड़ी समझने में और आसानी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, जो वो लोग जिनकी कोशिशें, जिनकी तगोदो, जिनकी मेहनतें, जिनका काम रास्ता भटक गया, फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी में जो सही टारगेट की तरफ नहीं चल सके, टारगेट से वो हट गए, रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए, जो है सीधे रास्ते पर नहीं चले, भटक गए। दुनिया की जिंदगी में उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें सही सिमत में और राइट डायरेक्शन में नहीं रही, वो रास्ता भटक गए। और क्या है? एक तो होता है कि आदमी रास्ता भटक गया और उसको फौरन एहसास हो गया कि मैं रास्ता भटक गया हूं, तो इसमें ये गुंजाइश होती है कि आदमी फिर से सीधे रास्ते पर आ जाए।
गलती से रास्ता भटक गया तो इसमें गुंजाइश क्या होती है कि आदमी फिर से सीधे रास्ते पर आ जाए। आदमी सीधे रास्ते पर आ जाता है तब तो उसके बारे में भी है कि वो टारगेट को पहुंच जाएगा। लेकिन आदमी रास्ता भटक गया और उस पर से उसे ये ख्याल है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यही रास्ता सही है। रास्ता भटकने के बावजूद भी ये एहसास भी चला जाए कि मैं रास्ता भटक गया हूं, तो ऐसा आदमी कभी मंजिल को नहीं पहुंचता, कभी टारगेट को नहीं पहुंचता। हमेशा वो अपना टारगेट मिस करता है, किसी और जगह पहुंच जाता है। किसी और जगह पहुंच गया तो अब वापसी के रास्ते वहां से बंद हो चुके होते हैं। रास्ते में ही एहसास हो जाए तो सीधे रास्ते की तरफ फिर से पलट आने की गुंजाइश होती है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, देखिए गौर कीजिएगा, बहुत ही अहम आयत है ये, हमारी जिंदगी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और नफ्स के तज़किये से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत गौर कीजिएगा इस आयत के ताल्लुक से। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिन वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में रास्ते से भटक गई, जिनका काम रास्ते से भटक गया, जिनकी जिद्दोजहद और जिनका जो है जिनकी कोशिशें ये सही डायरेक्शन से हट गई, दूसरे रास्ते पर चल गए ये लोग। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, हालांकि वो ये समझते हैं, उनका अपना गुमान ये है कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं। रास्ता भटक जाने के बावजूद भी क्या समझ रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो मेहनतें हैं, ये बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं। उनका ये ख्याल है, उनका ये गुमान है। और याद रखिए, जिनका ये ख्याल और गुमान होता है, सीधे रास्ते पर पलटाने की उनकी उम्मीदें बहुत कम होती हैं। ये इस आयत का पूरा तर्जमा है। अच्छी तरह से इस तर्जमे को नोट कर लीजिए। उर्दू ज़बान में भी, अरबी ज़बान में, उर्दू ज़बान में जो इसके तर्जमे आम तरीके से किए जाते हैं या किए गए हैं, वो अपने तौर पर लोगों ने तर्जमा किया है और वो कोशिश की है लोगों को समझाने की, लेकिन उस तर्जमे से वो पूरी तस्वीर इसके सामने नहीं आती है, जो तस्वीर अभी मैंने अभी तर्जमा करके आपके सामने पेश की है। जिस तरह से हमें ने इसको जो है आपके सामने पेश किया है, तर्जमे से वो बात नहीं आती। मैं जो है आपके सामने एक तर्जमा पढ़ देता हूँ। जैसे ये है तर्जमा किया उर्दू में, वो हैं कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बेकार हो गई, बेकार हो जाना अलग है, रास्ते से भटक जाना अलग है। ये रास्ते से भटक जाने जो लफ्ज आया हुआ है ना, इसमें बड़ी मानवीयत है, वही लफ्ज रहना चाहिए। अरबी जबान का ये लफ्ज है ना वल्ला, इस पर हम बहस करेंगे आज के इस दर्स में, और यही रहना चाहिए इसके तर्जुमे। जल्ला के माने होते हैं रास्ते से भटक जाना, जैसा हर कोई जानता है, रास्ते से भटक जाना। अब देखिए इस जो है आयत के अंदर जो मानवीयत पाई जा रही है, वो मैं आपको जो तस्वीर है वो तस्वीर आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट यहाँ नोट कीजिएगा, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी कोशिशें, साई का मैंने पहले ही बता दिया आपको माना जो है, जिनकी कोशिशें, जिनकी मेहनतें और जिनके काम दुनिया की जिंदगी में रास्ते से भटक गए। क्या है इसका मतलब? टारगेट है, एक मंजिल है जहां पहुंचना था और वहीं पहुंचने के लिए सारी कोशिशें और सारे काम करने थे,
लेकिन हमने ऐसा काम शुरू कर लिया कि वो काम उस मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं है। रास्ता भटक गए, सीधे रास्ते से हट गए, सारी कोशिशें, सारी मेहनतें, मेहनत के बावजूद भी ये सब की सब क्या है, बेकार हो गई। यहाँ तीन अहम पॉइंट है मेरे भाइयों इस जो है टुकड़े में, इसे नोट कीजिए। पहली बात ये है कि सिर्फ अमल करना ये कामयाबी के लिए काफी नहीं है। ये पहली बात। आप दुनिया की जिंदगी की कामयाबी के लिए भी मेरे भाइयों, आखिरत की कामयाबी भी और दुनिया की जिंदगी की कामयाबी के लिए भी, मेरे ये जो तीन फायदे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस आयत के इस टुकड़े के बाद के ताल्लुक से, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, इसे नोट कर लीजिए ये तीन फायदे। पहला क्या है, याद रखिए, अमल करना किसी भी मकसद को और टारगेट को पहुंचने के लिए सिर्फ अमल करना ये काफी नहीं है। कोशिश करना सिर्फ यही काफी नहीं है। मेहनत करना यही काफी नहीं है। ये पहला फायदा याद, बल्कि क्या जरूरी है कि ये मेहनत, ये कोशिश ऐसे ढंग से की जाए कि ये टारगेट को पहुंचे, टारगेट को पहुंचे। वही मेहनत काम आती है, वही कोशिश काम आती है। हमारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करते, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, लोग जो है खूब पढ़ते हैं, लेकिन उनके जहन में कुछ भी नहीं बैठता। क्यों? इसलिए कि पढ़ना, ये मेहनत करना, ये कोशिश करना जब तक सही डायरेक्शन में ना हो उसका कोई फायदा नहीं होता। दिमाग में वो सही तरीके से बैठ नहीं पाते, इसीलिए आदमी टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ना भी है तो सही तरीके से पढ़ना, जो सही उसका तरीका है और सही रास्ता है उसी के मुताबिक पढ़ना, कोशिश करना, मेहनत करना, तभी आदमी टारगेट को पहुंचता है। ये पहला फायदा, सिर्फ अमल नहीं बल्कि अमल करते हुए ये बात जहन में रखिए कि हमारा ये अमल बिल्कुल सही सिमत में होना चाहिए। इंसान का जहन भी एक कंप्यूटर की तरह से है। आप जब तक सही तरीके से हर चीज को इस कंप्यूटर में फिट नहीं करेंगे, तब तक आप जब भी कोई फाइल चाहेंगे तो सही तरीके से वो फाइल आपके सामने ओपन नहीं हो पाएगी, जब तक आप उसको सही तरीके से फिट नहीं करेंगे। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े मशहूर जो है, बड़ी मशहूर शख्सियत है ये, सियासी जो है उनका अपना सियासी कद भी था, पॉलिटिक्स में भी थे और साथ में दीन का इल्म भी रखते थे। तो इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा जहन दिया था और बड़ा गजब का इनका हाफिजा भी था। तो जब कोई चीज ये पढ़ लेते थे तो उनके जहन में बिल्कुल वो चीज बैठ जाती थी, और जब भी उनसे कोई बात कही जाती या वो कोई चीज लिखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे सारी किताबें उनके सामने खुली हुई हैं और उसको देख करके वो लिख रहे हैं। इस तरह से बड़ा ही मुरत्तब अंदाज होता था और बड़ी तरतीब के साथ चीजें, बरमहल बातें जो है पेश किया करते। एक मर्तबा उनसे किसी ने पूछा कि ये आपने जो है, आपने कैसे मेहनत की है, कैसे आपने कोशिश की है कि आप इसमें इतना कामयाब हैं और आपके पास इतना अच्छा इल्म है। तो उन्होंने कहा कि इंसान की, जो भी इंसान पढ़ता है उसकी मिसाल समझिए एक स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर, मैं ये आयत समझने के लिए आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, स्टोर कीपर की है। या कह लीजिए आज के जमाने में जो प्रोविजनल स्टोर होते हैं, जगह जगह सामान रखे हुए होते हैं दुकान में, और जो स्टोर कीपर होता है, कोई आदमी आया सामान मांगा, ला करके उसको देता है। कहा कि जिस स्टोर कीपर ने अपनी दुकान में हर सामान को बड़ी तरतीब से रखा है कि जैसे ही किसी ने कहा फला सामान, तो उसका फौरी तौर पर हाथ उसी जगह पे पहुंचता है जहां वो रखा है, उठाया, उसको दे दिया। और जिसने सामान को स्टोर में
अच्छी तरह से मुरतब नहीं किया, अरेंज नहीं किया है। एक सामान मंगा, यहाँ ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, और एक सामान देने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। देखिए मेरे भाइयों, मेहनत दोनों में है, काम ये दोनों है, दोनों शक्लों में सामान रखा गया है। लेकिन जब यही सामान बहुत मुरतब रखा गया है, बड़ी तरतीब से रखा गया है, तो जैसे ही मुंह से आवाज निकली वैसे ही सामान तक हाथ खुद ब खुद पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ढूंढते ढूंढते बहुत देर लग जाएगी। मेहनत दोनों में है। आपने अंदाजा लगा लिया होगा मिसाल से, तो क्या कहा अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कि इंसान के दिमाग की का मसला भी ऐसे ही है। जब आप किसी भी चीज को एक तरतीब से पढ़ते जाते हैं तो जहन में आपके तरतीब से चीजें बैठती जाती हैं, और जितनी तरतीब से जहन में चीजें बैठी हुई होंगी, उसी लिहाज से जैसे ही आपके सामने कोई बात आएगी तो आपके सामने, आपके जहन में वही सफा, वही पेज नंबर खुल जाएगा जिस तरतीब से आपने अपने जहन में ये चीजें स्टोर कर रखी है, अपने जहन में ये चीजें फीड कर। तो मेरे भाइयों, ये है असल काम करना और काम सही तरीके से अंजाम देना। आपको एक दूसरी मिसाल देता हूं। पेपर्स रखे हुए हैं, आदमी ये पेपर रखा है और फैन भी चल रहा है, पेपर उड़ते जा रहे हैं। आदमी उड़ता है, वो एक पेपर लाता है, रखता है, दूसरा उड़ गया, फिर वो लाता है। याद रखिए, कभी भी वो ये पेपर जमा नहीं कर पाएगा। हालांकि भाग दौड़ करते करते पसीने पसीने हो जाएगा, पेपर लाके रखते रखते पसीने पसीने हो जाएगा, लेकिन पेपर जमा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत तो कर रहा है, लेकिन इस मेहनत के लिए जो सही तरीका है कि या तो फैन को ऑफ कर दे, या जो कागज ला करके रखा है, जो पेपर रखा, उसके ऊपर कोई जो पेपर वेट जो होता है वो रख दे, ताकि वो उड़े ना फिर दोबारा। तब जा करके कुछ उसकी मेहनत कामयाब होगी, वरना कामयाब नहीं हो। तो याद रखिए, सिर्फ मेहनत और कोशिश, इसी से इंसान कामयाब नहीं होता है। जो लोग घाटा उठाते हैं मेरे भाइयों, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कुछ कम नहीं होती। जो लेजी किस्म के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आयत में उनकी बात नहीं हो रही, आयत में उनकी बात हो रही है जो वाकई माने में मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनतें ये सही डायरेक्शन में नहीं है। तो ये याद रखिए, दुनिया की जिंदगी में भी, आखिरत की जिंदगी में भी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेहनत कामयाब हो और आपकी मेहनत रंग लाए, तो ये जरूरी है पहले कि आप अपनी मेहनत को, अपने काम को सही डायरेक्शन में लेकर के जाइए। जब तक सही डायरेक्शन में नहीं होगा, उसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा, या जैसा फायदा होना चाहिए वो फायदा आपको नजर नहीं आएगा। ये पहला जो है फायदा। दूसरा जो है इसमें ये है कि ये भी जहन में रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम का जो भी फायदा है, हमको वो फायदा पूरे तरीके से हासिल हो रहा है या नहीं, उसके लिए हमें जरूरी यह है कि हम अपने काम का बराबर जायजा लेते रहें। ये दूसरी अहम चीज, इसे नोट कीजिए। हमारा ये काम बिल्कुल सही सिमत में है, सही डायरेक्शन में है, इसके लिए हमको बार बार अपने काम का जायजा लेना जरूरी है। अपने काम का जायजा लेना, तब जाकर के हम टारगेट पर सही तरीके से पहुंचेंगे। वरना हो सकता है कि आज हमने जब ये काम शुरू किया तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में था, लेकिन रास्ते में कहीं ऐसा हो गया कि दाएं बाएं भटक गए। शुरू किया था सही तरीके से, लेकिन लंबा रास्ता है, टारगेट जो है बहुत ऊंचा टारगेट है,
وہاں تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے، محنت درکار ہے، کوشش جو ہے درکار ہے، اور راستے میں جانے کا ڈر بھی ہے، تو ہم بھٹک تو نہیں گئے، اس کے لیے ہمیں بار بار اپنا کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ حساب بھی کرنا ہوگا، محاسبہ کرنا، جائزہ لینا، اس سلسلے میں برابر جو ہے جائزہ لیتے رہنا کہ ہماری کوشش، ہماری محنت اپنے صحیح ڈائریکشن میں ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، وہ پوچھتے رہتے تھے اپنے ہی ساتھیوں سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیے کہ میرے اندر کوئی نفاق کی چیز تو نہیں ہے؟ ڈر رہے ہیں، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، لیکن ڈر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اپنا جب محاسبہ کرتا ہے آدمی اور برابر جائزہ لیتے رہتا ہے تو ڈر آتا ہے کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں ہمارے کام میں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم راستے سے بھٹک گئے، ایسا تو نہیں ہے کہیں۔ یہ اپنے کام کا جائزہ لیتے رہنا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی عادت تھی۔ آپ مشہور حدیث جو ہے اس کے بارے میں سنے ہوں گے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ، اور جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو ہے مجلسوں میں رہتے تھے تو ایمان اور جو ہے نفس کا تزکیہ جو ہو جاتا تھا، ایمان جو بڑھ جاتا تھا، ایمان میں جو جلا آ جاتی تھی اور ایمان میں جو قوت آ جاتی تھی، وہ گھر میں جاتے تھے بیوی بچوں میں تو وہ چیز اور ایمان کی وہ چاشنی باقی نہیں رہتی تھی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، جائزہ لینا کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ بھاگے بھاگے آئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس طرح سے یہ سب مل کر کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں یہاں پوری حدیث نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم جب سیدھے راستے پر چلنا شروع کیے ہیں تو برابر ہمیں یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا راستہ سیدھا ہی رہے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے میرے بھائیوں کہ دونوں طرف سے شیطان اور شیطان کے چیلے لگے ہوئے ہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے۔ بار بار ہم یہ بات ذکر کرتے رہتے ہیں، ہماری کوششیں اور ہماری یہ محنتیں راستے سے بھٹک جائیں، اس کے لیے کون کوشش کر رہا ہے میرے بھائیوں؟ چار چیزیں ہیں جو ہم کو راستے سے بھٹکانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو شیطان ہے، ابلیس اور ابلیس کے چیلے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے کہ میں، اور وہاں پہ چیلنج کر رکھا ہے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ میں ان انسانوں کو راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، آپ نے راستہ صحیح چنا، صحیح راستے پر جا رہے ہیں ٹارگٹ کی طرف، ڈائریکشن آپ کا صحیح ہے، لیکن اس ڈائریکشن سے آپ کو بھٹکانے کے لیے یہ ابلیس بھی تو موجود ہے، آپ کو وہاں سے ہٹائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، شروع کیا تھا تو صحیح تھا لیکن راستہ بیچ میں بھٹک گیا، ان کی کوششیں بھٹک گئی۔ تو یہ تیسری بات، تیسرا فائدہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ شیطان لگا ہوا ہے، ایک تو شیطان، دوسرا کیا؟ انسان کا اپنا نفس بھی ہے میرے بھائی، نفس امارہ جسے کہتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی یہ چیز، انسان فرشتہ نہیں ہے، فرشتے جن کے اندر گناہ کرنے کا کوئی داعیہ نہیں ہوتا ہے، انسان ہے، اس کے اندر نفس امارہ ہے جو برائیوں کی طرف، تو راستے سے بھٹکانے کے لیے یہ نفس بھی کوشش کرتا ہے اپنے طور پر۔ انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، شہوتیں ہوتی ہیں، اور یہ شہوتیں چاہے وہ پیٹ کی شہوت ہو، بھوک اور پیاس کی، یا یہ کی شرمگاہ کی شہوت ہو، یہ شہوتیں بھی اس کو اس سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے، راستہ جو ہے گم کرنے کے لیے، وہ بھی اپنی طرف کھینچ
करती हैं ये शहवतें। तीसरी चीज इसमें ये भी है कि इंसान जो जिस मुआशरे में रहता है, समाज में रहता है, तो वहाँ बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं। ये रस्म रिवाज भी इंसान को सीधे रास्ते से हटाने की जो है कोशिश करते हैं, यानी ये भी सबब बनते हैं। कोशिश का मतलब सबब बनते हैं। इंसान बहुत अच्छा होता है, हमने बहुत से देखे लोगों को देखा शादी विवाह के मौकों पर बड़ी अच्छी उनकी जिंदगी होती है और बहुत ही जो है सही टारगेट पर जाने वाले लोग होते हैं, ये सिरात मुस्तकीम पर गामजन लोग होते हैं ये। लेकिन शादी का मामला आया, विवाह का मामला आया, तो उनके यहाँ जो रस्म रिवाज होते हैं वो रस्म रिवाज गैर इस्लामी होने के बावजूद भी कभी कभी अपने ही समाज और मुआशरे के बंधन में ऐसा बंध जाते हैं कि सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये भी एक सबब बनता है। सबब जो है इंसान के बुरे साथी भी हैं, ये बुरे साथी भी उसे सीधे रास्ते से भटका लेते हैं। ये इंसानों में से शैतान है जो इंसान को, जो उसकी सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में उसकी कोई कोशिशें चल रही हैं, मेहनतें चल रही हैं, उस रास्ते से हटा देते हैं और गलत रास्ते पर उसको लगा देते हैं। तो इंसान भी इसका सबब बनते हैं। जो इंसानों में शैतान होते हैं वो भी इसका सबब बनते हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने आपसे कहा कि एक तो काम करना, अमल करना, यही काफी नहीं है। अमल तो हर कोई करता है, काम तो हर कोई करता है, लेकिन हमको ये जरूरी है हमारे लिए कि हमारा जो काम है, हमारा जो अमल है, हमारी जो कोशिशें हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, ये पहले जरूरी। तो इसके लिए हमें इसका जायजा लेते रहना चाहिए बार बार, क्योंकि रास्ते में शुरू तो किया हमने सही, लेकिन रास्ते में ये रास्ते इतने ज्यादा बीच बीच में रास्ते जो है टेढ़े मेढ़े हैं, जहां पर ये शैतान और दूसरे जो है चीजें हमको भटकाने की कोशिशें करती हैं। तो हमको रास्ते से भटकना नहीं है और बराबर अपना जायजा लेते रहना है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और सही डगर पे जा रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे लिए ये जानना मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। तो ये बात हो गई 3 फायदे की इस टुकड़े के, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। उसके बाद क्या कहा, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना। अब रास्ता आदमी भटक जाए, रास्ते से भटक जाए, टारगेट को नहीं पहुंचेगा उस वक्त, लेकिन अगर उसे एहसास हो जाए कुछ दूर चलने के बाद कि अभी तक हमारा रास्ता जो है लगता है कि हम भटक गए हैं, फुला जगह नहीं आई या फुला जो है मकाम है, रास्ते में अगर एहसास हो जाए रास्ता भटक जाने का, तो वापसी की गुंजाइश है। आदमी फिर से टारगेट पे आ जाए, अपने जो है सही डायरेक्शन में आ जाए, तो टारगेट को पहुंच सकता है, अगर कि उसको देर लग जाए, लेकिन पहुंच जाएगा। है ना, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। और दूसरी शक्ल इसकी ये है कि आदमी ये समझे कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं यही टारगेट तक जाने वाला रास्ता है, यही मंजिल तक जाने वाला रास्ता है, अपनी पूरी कोशिशें उसी रास्ते पर लगा रखी है। तो इनके बारे में ये उम्मीद नहीं होती कि ये फिर से सही डायरेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि पहले ही से उनके जहन में ये बात बैठी है कि हम तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है। अब ये टुकड़ा, दूसरा जो टुकड़ा है ना, इस पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, तो इस आयत की पूरी तफसीर आपको समझ में आ जाएगी। और दुनिया में जो लोग हैं किस तरह से वो रास्तों से भटके हुए हैं और कैसे उनके जहनों में ये बात बैठी है कि वो तो मुत्तकी और परहेजगार और इतने आला दर्जे के मोमिन हैं कि उनके लिए नसीहत की कोई जरूरत ही नहीं है, और सीधे रास्ते को पर तो बिल्कुल वो गामजन है और उनसे जो कोई उम्मीद ही नहीं है कि उनका रास्ता जो है भटक जाए, उनकी उम्मीद ही नहीं। ऐसा जो तस्वुर करके बैठे हैं ना, तो वो लोग जरा इस आयत से गौर करें।
देखिए, याद रखिए मेरे भाइयों, दुनिया की हमारी जिंदगी यही है। अब मैं आपको ये जो बातें थी, अब मैं आपको इसे बिल्कुल जो है, जो वाकई जो है रियलिटी है दुनिया की जिंदगी की और आखिरत के ताल्लुक से, अब मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। हम सब का टारगेट इस दुनिया की जिंदगी में क्या है मेरे भाइयों? जन्नत। यही हमारी मंजिल है और यही हमारा घर है, यही हमारा वतन है, जहां आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे जद्दे अमजद को वहां पे रखा गया था। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को वहां रखा गया था। जन्नत दिखा दी गई थी और उसी जन्नत के हम वारिस हैं। हमारा वो टारगेट है और दुनिया की ये जिंदगी हमारी एक मुसाफिर की जिंदगी है और इस दुनिया की जिंदगी में हमारी पूरी कोशिशें उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। हमारे सारे अमल उसी डायरेक्शन में जाने चाहिए जिस डायरेक्शन से ये सीधा रास्ता चलते हुए जन्नत को जाता है। जन्नत हमारी मंजिल, जन्नत हमारा टारगेट है। अब यही सही डायरेक्शन में हमारी कोशिशें हैं तो हम सीधे कहां पहुंच जाएंगे मेरे भाइयों? सीधे जन्नत में पहुंच जाएंगे और टारगेट को हासिल कर लेंगे। यही अल्लाह के ओ नेक बंदे हैं, अंबियाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे गए पैगंबर रसूल और सालेह और नेक लोग, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में कभी भी इसी रास्ते पर वो गामजन रहे, सिराते मुस्तकीम पर, और हमेशा अपना जायजा लेते रहे कि कहीं रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं, और बिल्कुल पूरी कोशिश की दुनिया की जिंदगी में कि वो अपने इसी टारगेट पर चलते रहे और अपने टारगेट को पहुंच जाएं। याद रखिए मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं, हम इंसानों में ये वो लोग हैं जो अपने टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाएंगे और उनकी कोशिशें इस दुनिया की जिंदगी में बेकार नहीं गई, रायगा नहीं गई, वो रास्ते से भटके नहीं, इसीलिए दुनिया में उनका कोई भी काम बेकार नहीं गया। बेकार कब जाता है काम? जब आदमी रास्ते से भटक जाता है। ये पहली किस्म है लोगों की। दूसरी किस्म किन लोगों की है मेरे भाइयों? उन लोगों की है जो सीधे रास्ते पर चले तो सही, शुरुआत तो यही रही, इस्लाम पर चले, ईमान का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन बीच बीच में शैतान की दावत पर वो भटक भी जाते थे रास्ते से। ये रास्ता छोड़ करके शैतान के बताए हुए रास्ते पर चले गए, नफ्स के रास्ते पर चले गए, नफ्स अम्मारा के रास्ते पर चले गए, रस्म रिवाज में चले गए, इंसानों की सोहबत में रह करके रास्ता भटक गए। लेकिन जल्द ही एहसास हो गया उनको कि हमने रास्ता जो है गलत इख्तियार कर लिया है, हम रास्ते से भटक गए हैं। और जब तक इंसान दुनिया की जिंदगी में है, अपने टारगेट को नहीं पहुंचा है, ये याद रखिए, तब तक उसके पास ये गुंजाइश है कि फिर से रास्ते में वापस आ सकता है। अगर रास्ता भटक करके जहन्नम तक चला गया तो वापसी की गुंजाइश नहीं। ये कब होगा? जब आदमी उसी रास्ते पर चलते हुए उसकी मौत हो जाए। जब तक दुनिया की ये जिंदगी है, इंसान के लिए वापसी का रास्ता है। अगर एहसास होता है और सीधे रास्ते पर वापस आ गया तो मेरे भाइयों, ताखिर से ही सही, ये भी अपने टारगेट को पहुंच जाएगा। लेट हो जाएगा लेकिन टारगेट को पहुंच जाएगा। रैंक इसका भी आ जाएगा, चाहे ये रैंक कुछ कम हो सकता है कि बिल्कुल आला दर्जे का मकाम जन्नत में ना मिले, लेकिन जन्नत में दाखिला तो मिल जाए। ये किन लोगों के लिए? जो रास्ता भटके लेकिन फिर सीधे रास्ते पर वापस आ गए और उनकी कोशिशें सही डायरेक्शन में आ गई और सही तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। तीसरी किस्म उन लोगों की है मेरे भाई, जो रास्ता भटक गए
रास्ता भटक गए, लेकिन ये समझते रहे कि हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। जिनकी बात यहाँ कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई है कि वो ये समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भट जाने के बावजूद भी ये समझ रहे हैं कि हम ही टारगेट में जा रहे हैं और जन्नत हमारा मुकाम, जन्नत के हम वारिस, जन्नत के हम ठेकेदार, हम जिसको चाहेंगे उससे जन्नत, और जन्नत के दरवाजे हमारे लिए चौपट खुले हुए रहेंगे। जिन्होंने ये समझ लिया, रास्ता भटकने के बावजूद भी ये एहसास नहीं रहा कि हम रास्ता भटक गए, जिनको एहसास ही नहीं कि रास्ता भटक गए, बल्कि जो ये सोचते रहे कि हम ही सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और सीधे रास्ते पर चलने वालों को समझते रहे कि ये भटक गए हैं रास्ता, ये बड़ा खतरनाक किस्म का गिरोह है इंसानों का, बड़ा ही खतरनाक किस्म का फिरका है इंसानों का, जो रास्ता भटक गया है और फिर भी ये समझता है कि मैं रास्ता भटका नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की के बारे में ये उम्मीद नहीं रहती कि फिर वो सीधा रास्ता तलाश करते हुए सही डायरेक्शन में आ सकते हैं, उम्मीद नहीं रह जाती। अब ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? सलफ में इसकी तफसीर करते हुए कुछ लोगों ने ये बात कही कि इससे मुराद यहूदो नसारा है। यहूदो नसारा जो ये समझते रहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यही रास्ता बिल्कुल जन्नत का रास्ता है और सही टारगेट पर हम जा रहे हैं, और दूसरों को समझते थे कि ये लोग गुमराह हो। इसमें कोई शुबहा नहीं है मेरे भाइयों कि यहूद और नसारा भी इसमें दाखिल है, क्योंकि यहूदियों की भी सबसे बड़ी खराबी यही थी कि वो ये समझते थे कि हम तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह ताला हमें अजाब नहीं देगा, हमारे लिए तो क्या है, जन्नत है और हम ही जन्नत वाले हैं, जन्नत सिर्फ हमको मिलने वाली है, किसी और को नहीं। इसीलिए कोई आदमी यहूदी भी नहीं बन सकता। उनके यहाँ तो ये है कि जो पैदाइशी यहूदी है वही यहूदी है, आदमी यहूदी बनना चाहे तो नहीं बन सकता। नसारा के यहाँ भी ये गलतियां रही कि वो रास्ता भटक जाने के बावजूद भी उन्होंने रहबानियत इख्तियार कर लिया, या तो ईसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत को बिल्कुल छोड़ दिया, गुमराह हो गए, लेकिन ये समझते रहे कि हम ही बिल्कुल सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। यही हाल मेरे भाइयों, बाज़ मुफस्सिरीन ने, सलफ में से बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर करते हुए क्या कहा है कि इससे मुराद अहले बिदात है। तो अब अहले बिदात जिसके ज़माने में जैसे रहे लोग उनका नाम लेते रहे। सबसे पहले जो बिदात दुनिया के अंदर जो है हुई और जो सबसे पहला फिरका अहले बिदात का जाहिर हुआ वो खवारिज का कहलाता है, इसलिए उस जमाने के मुफस्सिरीन ने खास तरीके से खवारिज का नाम लिया। तो ये खास खवारिज ही नहीं बल्कि यूं कह लीजिए कि जो भी अहले बिदात हैं, यानी जो रास्ता भटक गए, बिदातों में मुब्तला हो गए और सही तर्ज, सही फिक्र और सही मनहज और मेथड से वो रास्ते से भटक गए और वो क्या समझते रहे कि हम ही सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे भाइयों का यही हाल हो गया है, उनको ये गुमान है कि हम ही सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, बकिया सब गुमराह। जरा अपना जायजा लेते रहिए। याद रखिए, जो वाकई माने में मोमिन होगा वो तो अपनी फिक्र पहले ये करता है कि अपना जायजा लेता रहे कि वो सीधे रास्ते पर है या नहीं। किताब और सुन्नत का जो सीधा रास्ता है, जो सिराते मुस्तकीम है, जो जन्नत की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता है, जो मंजिल को पहुंचाने वाला सीधा रास्ता है, जो टारगेट तक ले जाने वाला सीधा रास्ता है, उस पर वाकई माने में वो है या नहीं है। अपना जायजा लेना चाहिए, अपने बारे में डरना चाहिए, दूसरों पर हुक्म लगाने के बजाय। जो दूसरों पर हुक्म लगाने में बहुत जल्दी करता है, याद रखिए ये खुद रास्ते से भटक गया है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अहले बिदात भी इसमें शामिल हैं, जैसा कि सलफ में से बहुत से लोगों ने ये बात भी जिक्र की है।
क्योंकि इनका भी यही मामला होता है अहले बिदात का, कि वो ये समझते हैं कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ, और जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वही सीधा रास्ता है। वो उसको दीन समझ के करते हैं, उसको सही जो है मजहब समझ के करते हैं, सही तरीका समझ के करते हैं। इसीलिए वो भी उस रास्ते से वापसी नहीं करते, और टारगेट की तरफ जो सही डायरेक्शन है उसके ऊपर उनकी भी वापसी नहीं हो पाती है। और दुनिया में उनकी सारी कोशिशें इस तरीके से रास्ते से भटक जाती हैं, सारे काम रास्ते से भटक गए, और वो यही समझते रहे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से बाज़ जो मुफस्सिरीन ने इससे मुराद मुश्रिकीन को लिया है। मेरे भाइयों, जितने भी रास्ता भटके हुए लोग हैं सब की सब इसमें शामिल हैं। आयत मैंने पहले पढ़ करके आपको सुनाया, तर्जमा करके आपको बताया, और अगर आपको आयत अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो आप खुद भी ये बात कह सकते हैं कि आयत ये बिल्कुल आम है हर एक के बारे में। जो भी रास्ते से भटक जाए मेरे भाई, हमारी मंजिल और हमारा टारगेट क्या है वो हमने आपके सामने रखा, और जो भी उस मंजिल और रास्ते तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, उस रास्ते से जो भी भटक जाए, रास्ता भटक करके इंसान चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, ये मेहनत उसके काम नहीं आएगी। ये मेहनत सब की सब अकारत जाएगी, बेकार जाएगी। हालांकि उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इस अच्छा काम करने का उन्हें बहुत अच्छा सिला मिलने वाला है, और बड़ा अजर व सवाब मिलने वाला है। अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा ऊंचा मकाम होने वाला है। हालांकि हकीकत तो ये है कि उनकी ये सारी कोशिशें रास्ते से भटक गई। अब तो मेरे ख्याल में मेरे भाइयों आप लोगों को ये आयत बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आयत पढ़ता हूँ, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में रास्ते से भटक गई हैं, रास्ते से हट गई हैं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, हालांकि वो समझते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिशें सही सिमत में जा रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, जबकि वो रास्ता भटक गए हैं। आगे इनके बारे में और क्या बातें हैं, इंशाअल्लाह आगे की आयत में इसकी मज़ीद जो है वजाहत आएगी आपके सामने, मज़ीद इसकी तफसीर आपके सामने आएगी, और उसके लिए आप एक हफ्ते का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह अगले संडे को फिर आपके सामने एक नए दर्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज का तफसीर का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यकीनन मुझे यकीन है ये कि आपके नफ्स का तज़किया ज़रूर हुआ होगा इस दर्स में, और मुझे यकीन है कि आपके ईमान में ज़रूर जो है क़ुव्वत आई होगी, आपका ईमान ज़रूर बढ़ा होगा। ये चंद बातें थी इस आयत के ताल्लुक से। अब हमारा जो है अगला दर्स है, ये दर्स खिलाफत राशिदा के बारे में है।